अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टडी द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल, इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। यू नो दैट रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज़ रिटन इन हॉरिजेंटल फॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 2 - 1 7 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। हमने ये देखा कि जो मैट्रिक्स m है ये एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। तो इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। देर इज another example, m is equal to 1 - 1. You also see that there is only a one row. कॉलम जितने मर्जी हों लेकिन आपके पास रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी वो क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इस तरह की मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, m इज इक्वल टू 1 0. You see that there is only one column. Column is that type in which there is a vertical way. तो आपको नज़र आ रहा है ना कि m is equal to 1 0 ये एक vertical way है, तो this is a one column. Next example, n is equal to 2 0 1. There is also a one column. Our column matrix of order 2/1 and 3/1. इस तरह के कॉलम मैट्रिक्स जिसमें जो है सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रो जो जितनी मर्जी हो दैट डजेंट मैटर, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन कॉलम, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगेन आई रिपीट दैट रो मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड if it has only one row and a matrix is called a column matrix if it has only one column. Okay, next type is rectangular matrix. A matrix M is called a rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of M columns. वो कहते हैं आपको इस तरह की मैट्रिक्स है जिसमें आपके कॉलम और रो मैच नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपने एक मैट्रिक्स पढ़ी है ना जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, एक ही जैसे है ना, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। तो वो कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इस तरह नहीं होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके रो और कॉलम चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ A matrix. A is equal to 1 2 1 1 2 3. First of all, you have to check how many rows are there. There are 3 rows. First row, second row and third row. And how many columns are there? There are 2 columns, 1 column and 2 column. So it means it has 3 rows and 2 columns. ये मैच नहीं कर रहे ना, दोनों डिफरेंट है। रो 3 है और कॉलम 2 है, तो इट मीन्स ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ आल्सो अ मैट्रिक्स बी। लेट वी सी दैट देर इज़ one row, second row, one column, second column, third column. It means it has 2 rows and 3 columns. It doesn't match. Rows and columns are different. It means this is also a rectangular matrix. Next example, it has 1 row and 3 columns. ठीक है। Next example, D is equal to 7 8 0. It has 1 2 3 rows and 1 column. It is also a rectangular matrix. Again I repeat, a matrix is called a rectangular matrix if their rows and columns are not equal. जिसमें rows और columns equal नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ी है 2/2 3/3, ये equal है ना रो और कॉलम, लेकिन rectangular matrix में ऐसा नहीं होता। rows और columns जो हैं वो equal नहीं होते। Next is square matrix. A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. In this type, the rows and columns are equal. Let me see the example. A is equal to, there is a 1 row and the second row. There is a first column and the second column. They are matched.
2 rows and 2 columns. This is a square matrix. Now next example, B is equal to 1 row, second row, third row, 1 column, second column, third column. They also match. There are 3 rows and 3 columns. It means this is a square matrix. Next example, there is a 1 row and 1 column. It means 1 by 1. This is also a square matrix. Rows and columns are equal. That's why this is also a square matrix. Now I repeat all the types. Row and matrix. Row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix. These are the 4 types of matrices. Row matrix, in a matrix is called a row matrix if it has only 1 row, जिसमें एक ही रो होती है. Column matrix, a matrix is called a column matrix if it has only 1 column, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है. Rectangular matrix इस तरह की मैट्रिक्स होती हैं जिसमें rows and columns are not equal. And the square matrix is that matrix in which rows and columns are equal. Okay. Now next type, number 7, negative of matrix. Let AB be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all entries of A, that is negative matrix. It means if you have a matrix A like this, A is equal to 1 3 minus 2 4. अब हम इसका नेगेटिव कैसे लेंगे? नेगेटिव लेने का तरीका ये होता है कि ये जो सारी एंट्रीज है ना, इनके साइन चेंज कर देने आपने. साइन मतलब ये +1 है कन्वर्टेड इनटू -1, +3 कन्वर्टेड इनटू -3, -2 कन्वर्टेड इनटू +2 and +4 converted into -4. Okay, negative of a matrix is that type of matrix in which we change the signs of all the entries, जिसमें हम हर एंट्री का साइन जो है वो चेंज कर दें. अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगी तब बताऊँगी. इसकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें क्योंकि ये MCQs में आती है. इसका ना एक फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना होता है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric. ये इसका फॉर्मूला है. इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. जब भी आपके पास कहीं पे भी कोई MCQ आ जाता है जिसमें वो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएं, तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला बता देना होता है, जिसमें ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स के. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमेशा A ही हो, इसका B भी हो सकता है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, C भी हो सकता है, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C. अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपने ये याद रखना है जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा, दरमियान में इक्वल आएगा और फिर वही अल्फ़ाबेट दोबारा आएगा. ओके, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपने सेम वही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है. वही बात के जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं ज़्यादा बेटर आपको समझाऊंगी. अभी सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद रख लें. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. हमेशा जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. मतलब कि जैसे 2/2, 3/3 हमेशा ये इस तरह के होते हैं, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होते. अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A. जब भी आपके पास कोई अल्फ़ाबेट होगा स्क्यू सिमेट्रिक में तो उसके ऊपर ट्रांसपोज होगा, इज इक्वल होगा और फिर माइनस वही अल्फ़ाबेट दोबारा आ जाएगा. तो हम इसे कोई और अल्फ़ाबेट के साथ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं. B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C. मतलब कि आपने हमेशा याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उसका फॉर्मूला है दैट इज़ कॉल्ड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास फॉर्मूला होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A. बस आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं करनी. जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. ओके, now we start further. There are also many types of matrices. Next type, null or zero matrix. A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero.
The matrix in which all the entries or elements are zero is called a null or zero matrix. Like that, for example, this is a matrix, all the entries are zero, it means this is a null or zero matrix. These are all the examples of null and zero matrix. What is the order of this matrix? It has 2 rows and 2 columns. ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कितनी रोज़ है कितनी कॉलम्स हैं, सिर्फ आपने ये देखना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आपको इसका पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होता है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरह हम ट्रांसपोज लेते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो इट मीन्स हम उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं. इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डोनेटेड बाय. हम ट्रांसपोज को लिखते किस तरह हैं, जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर छोटा सा टी लिखा होगा इट मीन्स ये क्या है, ये शो करता है कि हम इस ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है. हम ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसके रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे. मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि इसे किस तरह करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2. ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास आता है टेक द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर इस तरह छोटा सा टी डाल देंगे. दिस शोज दैट वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ हाउ वी टेकिंग द ट्रांसपोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ रो, दिस इज द फर्स्ट रो. आपने इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है. कॉलम क्या होता है, वर्टिकल वे लिखना. तो हमारे पास रो है 1 2 3. आपने इस रो को कॉलम की फॉर्म में लिख देना है. ठीक है. नाउ सेकेंड रो 2 1 0. इस रो को भी आपने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, वर्टिकल में. नेक्स्ट थर्ड रो also written in vertical form. It means ट्रांसपोज लेना क्या होता है, जब भी we are changing rows into columns it means this is a transpose of a matrix. Got it? एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं हम. ये देखें, if b is equal to 1 0 2 2 -1 3. ये आपके पास जो है वो 2 रोज लग रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो. Change these rows into columns. ये देखिए 1 0 2. First row is changing into a first column. Second row 2 -1 3 changing into a second column. It means transpose of a matrix is called if we interchanging the rows into columns. जब हम rows को columns की form में change करके लिख दें it means वो क्या होता है, वो transpose of a matrix होता है. Got it? ओके, नेक्स्ट टाइप हमने रिपीट कर देती हूँ. हमने आज कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो. कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है. फिर हमने ट्रांसपोज पढ़ा. ट्रांसपोज में हम ये करते हैं कि जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर छोटा सा टी लिखा होता है इट मीन्स हमने उसका ट्रांसपोज सॉल्व करना होता है. सॉल्व कैसे करते हैं, हम रो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉलम में लिख देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट. इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. कि आपके पास जैसे कि 1 रो हो या 2 कॉलम हो, रोज और कॉलम्स में फ़र्क होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 rows and 2 columns, 3 rows and 3 columns. You see that rows and columns are same. Next,
हमने एक पढ़ी थी, फॉर्मूला टाइप पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें आपने एक फॉर्मूला याद रखना होता है। मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दी कि मैं आपको बता रही थी कि वो क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, कि किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एक छोटा सा टी लिखा होता है, दरमियान में द साइन ऑफ इक्वल, एंड नेक्स्ट वही अल्फ़ाबेट दोबारा लिखा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में भी फॉर्मूला होता है जो आपने याद रखना है। वो फॉर्मूला ये है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, कि किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसके ऊपर टी लिखा होता है, इज इक्वल है, और फिर माइनस का साइन है, और फिर वही अल्फ़ाबेट दोबारा लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। फिर हमने एक टाइप पढ़ी नेगेटिव मैट्रिक्स। द नेगेटिव मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच वी चेंज द साइंस। जब आपके पास प्लस का साइन हो तो हम किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में, और जो माइनस का साइन हो उसे चेंज कर देते हैं प्लस में। मतलब जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके आपने ऑपोजिट साइन लिख देने होते हैं। फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, जैसे कि आपको इसमें नज़र भी आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास डायगोनल जो जगह होती है, ये होती है आपकी डायगोनल जगह, जहाँ पे ये 1 2 3 लिखा है। इस डायगोनल पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए और इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास लाजमी 0 होने चाहिए। अब हम नई टाइप पढ़ने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लाजमी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, उसके बाद हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। जो डायगोनल वाली जगह है उसके ऊपर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपके पास सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, लाइक दैट। ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, देखें ये जो डायगोनल वाली जगह पे है इस पे आपके पास एक जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हों या अल्फ़ाबेट लिखे हों, लेकिन वो सेम होने चाहिए और उसके सराउंडिंग में क्या हो, 0 होने चाहिए। आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल में हमारे पास कोई भी डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में लाजमी बात है कि आपके पास ये जो नंबर्स हों डायगोनल वाली जगह पे ये सेम हों, लाइक दिस। ये भी आपके पास जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये देखें डायगोनल पे क्या है, नंबर सेम है, 3 और 3 एक जैसा नंबर है ना, डिफरेंट नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल, इसकी डायगोनल ही एक है, जगह नहीं है ना इसके इर्द गिर्द हम कुछ लिख सकें, तो ये भी आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी खास बात यह है कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि आपके डायगोनल पे एक नंबर हो और उसके इर्द गिर्द 0 हो। हम डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी, या इसके 2 नाम हैं, आप इसे आइडेंटिटी भी कॉल आउट कर सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट तब होता है जब उसकी डायगोनल वाली जगह पे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सिर्फ 1 हो, कोई भी नंबर नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, सिर्फ इसके डायगोनल पे अगर 1 1 लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि उसे हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी आपके पास आई वाली मैट्रिक्स हो और उसकी जो शेप हो या उसके जो नंबर्स हों वो इस तरह लिखे हुए हों, तो इसका मतलब आप उसे क्या कॉल आउट करेंगे, उसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। देखें एक और एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। डायगोनल पे आपके पास 1 1 है और उसके सराउंडिंग्स में क्या है, 0 है, दैट मीन्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक नोट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपके एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है। अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। वो कहते हैं स्केलर और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ना उन्हें हम डायगोनल मैट्रिसेस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो स्केलर होता है, आपको पता है ना स्केलर क्या होता है, कि उसके डायगोनल पे एक जैसे नंबर होते हैं और उसके सराउंडिंग में 0 होते हैं, तो वो भी तो एक डायगोनल है ना। और आइडेंटिटी में क्या होता है, उसकी डायगोनल वाली जगह पे 1 1 होता है, उसके सराउंडिंग में 0 होता है, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं कहा हुआ कि आप कोई भी कंडीशन लगाएं, आप उस पर कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। सेकंड नोट, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी डायगोनल को आप स्केलर और आइडेंटिटी नहीं कह सकते।